Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. Hope you all of you are doing good. So today we are going to start our new topic, that is photosynthesis. And in today's topic I am going to discuss about the introduction of the process and the small history related with this photosynthesis. So without wasting time, let's start with the topic photosynthesis. So all of you know that every living organisms, either these are plant, animals or human beings that exist on the earth, they need food. They need food to get energy for their survival. Okay, so the question is, from where they get food? From where they get food? So the question is very simple. If we have a look on a food chain or a food web, we will get the answer. Here is a small flow chart. See, an herbivorous animal get the food from the plant. Okay, because herbivorous eats plant. If we talk about the carnivorous, they are dependent on the herbivorous plants and herbivorous energy कहाँ से लिया था? Plant से. So जो energy plant से herbivores ने लिया, उसका कुछ part carnivores ने भी accept किया by eating the herbivorous. Okay, then if we talk about the omnivores, omnivores are the animals who eat plants as well as animals like human beings. तो अगर हम omnivores की बात करते हैं तो they will eat the carnivores or herbivores, or they will get the nourishment from the plants as well. So in all these cases you can make a link that directly or indirectly every organism, either it is herbivore, carnivore or omnivore, they will get the energy from the plants. जो कुछ भी प्लांट ने सिंथेसाइज किया वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आगे जाकर हर लेवल पे, चाहे उसकी क्वांटिटी कम होते चले गई लेकिन डिस्ट्रीब्यूट वही हुआ. सो नाउ प्लांट फ्रॉम द प्लांट गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन. प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? सो वी कैन से दैट only the plants have the ability to capture the sunlight and convert it into the chemical energy in the form of food by the process of photosynthesis. और कोई organism ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ plants के पास ही ये ability है. Okay, and you will be surprised to know that जितना भी solar radiation अर्थ पर आता है, out of the total solar radiation that comes on the earth, only 0.2% of it is trapped by the plants in the form of chemical energy, and it is sufficient for all the living organisms existed on the earth. Only 0.2%. How less it is. और इतना ही sufficient है हम सब के लिए, चाहे वो plants हैं, animals हैं, human beings हैं, whatever the living organism existed on the earth. Okay, so let's move on the photosynthesis. So हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस ही इन्वॉल्व है जो सबका नरिशमेंट कर रही है. तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगर लिटरल मीनिंग देखें फोटोसिंथेसिस का, आई कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. फोटोसिंथेसिस को हम फोटोन और सिंथेसिस. व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज लाइट, सनलाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक और सिंथेसाइज करना. तो ओवरऑल अगर लिटरल मीनिंग में देखूं फोटोसिंथेसिस का, तो व्हाट डज इट मीन? सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन. क्लियर? इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स हेयर. ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है एंड एनाबॉलिक प्रोसेस है. व्हाट आर द एनाबॉलिक प्रोसेसेस? Those processes in which bond formation takes place. Here what will happen? Food की formation होती है, एक complex structure की formation होती है, chemical bonds बनते हैं. तो ऐसी सारी reactions जिसमें energy utilize करके chemical bonds बनाए जाते हैं, energy को trap किया जाता है, उसको हम anabolic process कहते हैं.
फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर? और अभी आपने अब तक कई बार इस टर्म को पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, आई थिंक क्लास थर्ड फोर्थ से आप पढ़ते आ रहे हो। और एक जनरल इक्वेशन जो आपको पढ़ाई जाती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है? दैट इज 6 molecules of carbon dioxide combined with 6 molecules of water made food or hexo sugar and oxygen in presence of light and chlorophyll. Clear? Look at the equation. अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको वाटर चाहिए, लाइट मीन सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। अगर ये चार चीजें अवेलेबल हैं तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, है ना। रिक्वायरमेंट के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है हमें? हमारे एनवायरमेंट से, इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ये एंटर करती है बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड और यूटिलाइज होती है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन यू आप देख सकते हो मेरे वीडियोस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के, कि हाउ द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट। देन सनलाइट और सोलर रेडिएशंस, ठीक है, सनलाइट से मिल रहे हैं हमको। एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि ग्रीन पार्ट्स में मिलता है प्लांट्स के, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारी चार बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डुअल पर्पस सॉल्व कर रही है। कैसे? एक तो फूड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि हमको चाहिए सर्वाइवल के लिए, प्लस ये ऑक्सीजन रिलीज कर रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, हमको चाहिए नहीं थी बट इक्वेशन में मिल रही है। और ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे एयर को प्यूरिफाई करती है, क्योंकि ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का डुअल पर्पस सॉल्व हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड प्यूरिफाई एयर बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अबाउट 70 to 80 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एनवायरनमेंट से हटाने का या क्लीन, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करती है। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक पॉल्यूटर गैस है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो फोटोसिंथेसिस का एक रोल और भी है कि भाई ऑक्सीजन को दे रही है और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर रही है। आउट ऑफ दिस 70 to 80 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 90% is absorbed by aquatic plants, और aquatic में भी oceanic plants। And 10% is absorbed by terrestrial plants। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नीट में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये, है ना, कि ओशेनिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, इसके मैकेनिज्म की बात करें, ये प्रोसेस मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्लियर? तो ये एक दिन में, एक महीने में या एक साल में डिस्कवर नहीं हुई, इसकी डिस्कवरी में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं और कई साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद सारी चीज़ों को ना तार से तार जोड़ते हुए एक प्रोसेस को पूरा
बनाया गया और डिज़ाइन किया गया और तब हमारे सामने आज जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो सामने आई। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक हिस्ट्री पे एक छोटा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ही मेंशन किए हैं इस हिस्ट्री से रिलेटेड, और कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उन्हीं को मैं यहाँ डिटेल में समझा रही हूँ। तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री फर्स्ट. So start with the history. The first scientist or the person who said about photosynthesis, who said about the formation of food, that Aristotle and Theophrastus in 320 BC. He said that plants absorbed all their nourishment from the soil. They have no idea about the photosynthesis. उन्होंने कहा कि भाई plants जो है roots होते हैं और soil से सारा कुछ absorb करते हैं जो भी इन्हें चाहिए और accumulate करते हैं अपने body में. Clear? Then came with the Stephen Hales in 1727. स्टीफन हेल्स का नाम मैंने पहले भी लिया है, इसको उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी, नॉट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स ने प्रूव किया कि भाई प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ही चाहिए अपने न्यूट्रिशन के लिए, बिना सनलाइट के ये अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक है, तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारा नरिशमेंट, और फिर स्टीफन हेल्स ने कहा कि भाई सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के नहीं हो पाएगा। देन केम विद द जोसेफ प्रीस्ले इन 1772। जोसेफ प्रीस्ले का नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, आप केमिस्ट्री में कहीं पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो प्रीस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। व्हाट ही डिड कि एक बर्निंग कैंडल और एक माउस को इन्होंने एक बेलजार में बंद कर दिया। ठीक है, बेलजार में लिमिटेड एरिया है जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्लियर? वो नहीं जानते यहाँ क्या हो रहा है। आफ्टर सम टाइम व्हाट ही सॉ कि माउस जो है सफोकेट होने लगा, माउस सफोकेटेड, और जो बर्निंग कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश्ड हो गई। ठीक है, जलती हुई कैंडल वो बुझ गई और माउस सफोकेट होने लगा। ही कॉन्क्लूडेड डेट कि यहाँ जो ब्रीदिंग एनिमल है या ये जो बर्निंग कैंडल है, समथिंग हैज हैपेंड हियर, जिसने यहाँ की एयर को फाउल किया है, गंदा कर दिया है ना, बिकॉज ऑफ दिस ब्रीदिंग एनिमल एंड द कैंडल। तो जिसकी वजह से ये एनिमल सफोकेट होने लगा। इसको और जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया कि द सेम सेटअप with the burning candle and the mouse, along with it they placed a mint plant, mint plant, है ना। and after some time what he saw कि जैसे पहले माउस सफोकेट होने लगा था और कैंडल बुझ गई थी, अब नहीं हुआ। ठीक है, माउस didn't suffocate and candle continue to burn। ठीक है, जब ये हुआ तो इन्होंने ये कुछ कंक्लूड किया कि प्लांट्स ने, जो भी प्लांट इन्होंने अंदर रखा था, ही इट रेस्टोर टू द एयर वॉट एवर द ब्रीदिंग एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। उसने उस चीज को रिकवर कर दिया, इसलिए माउस भी सफोकेट नहीं हुआ और कैंडल भी नहीं बुझी, वो चलते रही। ठीक है, बट वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट केम, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, मैं बता दूं आपको कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्लियर? Next came with the Jan Ingenhorst. Jan Ingenhorst in 1779, just after the Priestley. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1772 में, अब बात हो रही है 1779 की। एक तो इन्होंने क्या करा था, जो प्रीस्ले का सेटअप था ये माउस वाला, इन्होंने क्या करा, दो सेटअप बनाए, एक को लाइट में रखा और एक डार्क में रखा। ठीक है, जब लाइट में उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि भाई सनलाइट जो है वो एसेंशियल है, जो भी प्रोसेस चल रही थी और माउस सफोकेट नहीं हुआ, कैंडल बर्न हो रही थी। तो प्लांट भी रखा हुआ था इन्होंने, है ना, प्लांट के ये वाला जो सेटअप था, दिस सेटअप,
इसको उन्होंने लाइट में भी रखा और डार्क में भी रखा, और उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई लाइट जो है वो एसेंशियल है, डार्क में प्रोसेस इतनी अच्छी नहीं हो रही है, लाइट में ज़्यादा अच्छी हो रही है और माउस सफोकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, इसको एक बीकर में लिया, पानी भर दिया इसमें, दो सेटअप बनाए, एक को सनलाइट में रखा, एक को डार्क में रखा। आफ्टर सम टाइम ही सॉ दैट सम एयर बबल्स अराउंड द प्लांट। जो सेटअप लाइट में रखा हुआ था उसमें इन्होंने प्लांट के पास कुछ एयर बबल्स देखे। जब इस एयर बबल को इन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऑक्सीजन है। उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, जबकि डार्क में जो सेटअप रखा था वहां पर कोई ऑक्सीजन इनको देखने को नहीं मिली, नो बबल आर फाउंड हियर। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर फाउल्ड बाय द ब्रीदिंग एनिमल और द बर्निंग कैंडल। उन्होंने बबल्स को भी एग्जामिन किया और इसको आइडेंटिफाई किया एज ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स ओनली, है ना। ये इन्होंने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से। Clear? Now come with the next. Then came the Pelletier in Caventon. इन्होंने 1818 में डिस्कवर किया ग्रीन पिगमेंट। सब ग्रीन पिगमेंट की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का वही ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर रहा है, वहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो उन्होंने इस ग्रीन पिगमेंट को आइसोलेट किया और एनालाइज किया और उसको क्लोरोफिल नाम दिया। Then came with the Von Meyer in 1845. What he did? He proposed that green plant transform light energy into chemical energy of organic matter. इन्होंने ये एक हाइपोथेसिस दिया, कंक्लूड नहीं किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि भाई प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किसी तरीके से चेंज करते हैं और उससे फूड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? Then came the next scientist Julius von Sachs in 1862. What he did? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से 3-4 कंक्लूजन निकाले, और वो कंक्लूजन क्या थे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं है कहीं भी डिटेल में। कंक्लूजन ये था, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, then glucose is stored as starch, एंड जो क्लोरोफिल की बात हो रही थी, क्लोरोफिल इज लोकेटेड in special body called chloroplast. Within plant cell. प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का कोई स्ट्रक्चर है जहां पर क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, देन केम विद द नेक्स्ट साइंटिस्ट इंगलमैन इन 1884। ये साइंटिस्ट थे पहले जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम पे वर्क किया फोटोसिंथेसिस के लिए। वर्कड ऑन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। व्हाट डज इट मीन? कि लाइट को स्प्लिट करना और लाइट का कौन सा कंपोनेंट है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये इन्होंने पहली बार बताया। इन्होंने क्या करा, एक व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म के थ्रू क्रॉस कराया तो लाइट जो होती है वो डिफ्रेक्शन हो जाता है, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। 7 कंपोनेंट्स होते हैं, एज यू नो, व्हाइट लाइट 7 लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने इस डिफ्रेक्टेड लाइट के आगे एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक ग्रीन एल्गी लिया, क्लेडोफोरा। ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है तो क्या होगा, अभी फोटोसिंथेसिस करेगा। और इस वाटर में इन्होंने ये बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया। उनका क्या हाइपोथेसिस था कि ग्रीन जो क्लेडोफोरा है, ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी और वो ऑक्सीजन ये डिफाइन करेगी कि ये बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी बैक्टीरिया वहीं अपनी कॉलोनीज बना लेंगे। जिस
जिस डिफ्रेक्टेड लाइट के सामने। ओके, तो जब इन्होंने सेटअप को सेट किया और कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि जो रेड लाइट थी दिस और जो ब्लू लाइट थी दिस, यहाँ पर आप देखोगे ये क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हुए। बैक्टीरिया और जगह भी हैं, बट जो मेन क्लस्टर मिला रेड और ब्लू लाइट के अगेंस्ट मिला। इन्होंने देखा इन फ्रंट ऑफ द रेड और ब्लू लाइट बैक्टीरिया थे, दे आर स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। ओके, तो इनका कंक्लूजन ये था कि भाई जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस occurs in red and blue light of spectrum। तो इन्होंने भाई ये एडअप किया कि जो भी व्हाइट लाइट है उसमें भी रेड और ब्लू लाइट में जो होती है फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? नाउ कम विद द नेक्स्ट साइंटिस्ट, ब्लैकमैन। उन्होंने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ही ऑल्सो प्रपोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये नीट का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। सो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। देन केम विद द नेक्स्ट साइंटिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील। Cornelius von Neal in 1931. What he concluded? He studied on purple and green bacteria. इन्होंने भी एक बहुत अच्छी फाइंडिंग दी, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि दैट फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट में ही हो सकती है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक सुटेबल सबस्ट्रेट से आती है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से। ये एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स देता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है और जिसके रिड्यूस होने से बनता है फूड, दिस शुगर, ठीक है। एंड खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने रेस्पेक्टिव कंपाउंड में जो भी इसमें एसोसिएटेड है। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करें, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज प्रोटॉन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वाटर ने तो प्रोटॉन डोनेट कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। और अगर ये ग्रीन प्लांट्स नहीं है, अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रोटॉन डोनर एंड oxidized to sulfur or sulfate compounds depending on the organism, ठीक है। समझ में आया कि नील ने क्या प्रपोज किया कि वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। जस्ट लिसन केयरफुली, उन्होंने प्रपोज किया बट नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ठीक है।
Then Robert Hill ने 1937 he proved that main function of chloroplast is to photo oxidize water, जिसको हम हिल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो हिल ने बताया कि भाई वाटर का सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्रोटॉन डोनेट हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया रूबेन हैशर्ड और कैमम ने 1941। ये नीट का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उन्होंने कैसे प्रूफ किया? उन्होंने रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन यूज किया। उन्होंने क्या करा? रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन, वाटर को रेडियो लेबल्ड कर दिया, वाटर में जो ऑक्सीजन थी उसको रेडियो लेबल्ड कर दिया। एंड जब उन्होंने पाथ ट्रेस किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन केम फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। देन केम द मेल्विन केल्विन। इन्होंने क्या करा? क्लोरेला, अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, इनका ऑर्गेनिज्म था क्लोरेला था। इन्होंने रेडियोएक्टिव कार्बन यूज किया इन कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का पाथ देखा कि भाई ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बना रहा है। और ये जो पूरा पाथवे था इसको उन्होंने जब आइडेंटिफाई किया, उसको कार्बन साइकिल और C3 साइकिल के नाम से आज हम जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। और इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1961। ठीक है, तो कैल्विन ने कार्बन का पाथ ट्रेस किया, रूबेन हैशर और कैमन ने ऑक्सीजन का पाथ ट्रेस किया वाटर को लेबल करके। क्लियर? देन केम द हेच एंड स्लिक। उन्होंने क्या करा? C4 साइकिल दिया, ट्रेस द C4 साइकिल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जिसको हम हेच एंड स्लेक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासेस में होती है ये साइकिल, अगेन फूड फॉर्मेशन का ही स्टेप है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पार्ट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ कम टू द कंक्लूजन। अब अगर हम ओवरऑल अपनी इक्वेशन को देखें, जो अब तक इतनी रिसर्च के बाद जो इक्वेशन सामने आई वो ये थी, 12 molecules of water combined with 6 molecules of carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll. It gives hexose sugar plus oxygen plus water as well. अब जो एक्सेप्टेड इक्वेशन है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नीट का क्वेश्चन है, इक्वेशन दे दी जाती है अलग अलग तरीके से और आपसे पूछा जाता है, तो इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए। और इस इक्वेशन को अगर ब्रेक करें, अगर हम इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करना चाहें, देन वी कैन एनालाइज द अबव इक्वेशन एज फॉलोज। मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें किस किस मॉलिक्यूल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या मिलता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ब्रेक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन इसको स्प्लिट कर देंगे हम, 12 molecules of hydrogen plus 12 molecules of hydrogen plus 12 molecules of oxygen। अब इसको आप अगर एडअप करो, ये देखो ये क्या बना? दिस इज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये क्या बना? 6 molecules of water। ये क्या बना? 6 molecules of oxygen। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से मॉलिक्यूल कहाँ जाके कंबाइंड हो रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस को कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। इन माय नेक्स्ट लेक्चर
अभी मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम मैकेनिज्म पढ़ें उससे पहले रॉ मटेरियल को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को छोड़ दिया जाए इन द सिस्टम, तो मेन चीज़ है हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमें प्लांट्स में मिलता है, और दूसरा है सनलाइट। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ ये मिलता है, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है। इन द सेम वे लाइट, सनलाइट जो कि सभी तरह के रेडिएशन अर्थ पे आते हैं, कैसे फिल्टर आउट होते हैं, क्या एक्शन स्पेक्ट्रम है, क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। और जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस साइकिल, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the structural part of chlorophyll. ठीक है। So this is all done for today. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे आज कुछ खास ज़्यादा था नहीं बताने के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है। So we will meet in the next lecture. Keep studying. Till then, stay safe. Take care of yourself. Goodbye.